Hello. Hi, good morning, class. Good morning, Good sir. morning, sir. Okay, just give me a minute. Let's just get started. तो प्लस मैंने ना आपको मेल शेयर किया है, आप चेक करोगे, मिल गया सबको? You just confirm it once कि सबको मेल आ गया. Yes, sir. Yes, sir. मैंने वो कल वाला जो था ना, वो पूरा मैंने आपको कोड भेज दिया. डेटा सेट फॉर्मेट में सब चीजें आपके पास हैं, राइट? अगर किसी को नहीं मिला हो तो बस मुझे बता देना. ईमेल आईडी माइट नॉट बी एडेड इन दैट. Okay. So let's get started. So we'll be starting off with logistic regression today, right? So we did linear regression. So now logistic regression. So again, so let's try to do that same kind of stuff, right? The question and so shall we do it? So we'll have to just ask a couple of questions to each other regarding what is logistic regression and some other useful questions around it. So who is going to start on this? Yes.
कौन पूछेगा questions? What is logistic regression? What is confusion matrix? What is sigmoid curve? Plus, you know what is sigmoid curve? It is a S-shaped curve ranging between 0 and 1. Okay, how is it created? So it is a probability above 0.5. It shows it gives the output as 1, and below 0.5 it gives the output as 0. Okay, so but why is it that we are just taping it off to 1 and 0? Okay, so let's discuss about it. See now logistic regression is something we use it for the classification purpose, right? When you have to predict a categorical variable, right? For example, if a example are like whether a person will buy the product or not, right? Now that is where what we are doing now is हम यहाँ पे क्या बात करें? We are not predicting any continuous variable कि salary कितनी है या profit कितना होगा. We are trying to predict that whether a person is going to buy or not, right? The output is only in the form of two categories, yes or no, two possible outcomes. So that is where what we do is we use the technique of logistic regression. Now the thing to catch over here is it is nothing much different from that linear regression. So as the name itself tells, log, right? What we do, it's more like a logarithmic equation that we use over here. Okay. So some examples, right? Like if I give you over here the financial company example, right? Like you go to a bank. So आप बैंक में गए तो बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करते हो. So the bank doesn't give you the loan right away. What they do is they have a logistic model with them in which they put all their information, and the model then predicts whether you will be able to pay back that loan or not. If the model says yes, you will be able to pay back, they give you the loan. They give you the loan. Otherwise, if the model says no, they just deny that they won't be able to give you the loan. They ask you to reduce down that amount. राइट अगर आपने 20 लाख का लोन मांगा तो बोलेंगे आप अच्छा 15 लाख कम ले लो, हम उतना तो दे सकते हैं, बट 20 लाख कम नहीं दे पाएंगे, राइट? सो दैट इज हाउ दैट प्रेडिक्शन मॉडल्स आर यूज्ड इन द इंडस्ट्री. And otherwise, if you will also see, it is also used a lot in the e-commerce. For example, you go to buy in the e-commerce platform, you all would have seen that आजकल आपने देखा ये चीज काफी आने लगी है कि when you look out for products, आजकल आपको मार्केटिंग के ईमेल आना स्टार्ट हो जाता है, कोई अपना मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा कि आपके कार्ट में कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं, विल यू लाइक टू बाय इट और नॉट, राइट? तो आपको उसका मेल मैसेज आपको सब भेजते हैं. So they also have a lot of things into place where they want to make sure कि जो items अपने जिस customers को target कर रहे हैं, whether that customer is going to buy or not. Because what happens is आप कुछ भी marketing करते हो, right? कुछ भी आप marketing करते हो तो marketing की एक cost होती है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखा कि अभी नया आईफोन लॉन्च हुआ. अब जब आईफोन लॉन्च होगा तो आईफोन अपनी बहुत ज्यादा मार्केटिंग करेगा, राइट? उसकी एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी, उसके आपको जगह जगह पे बैनर्स लगे हुए मिलेंगे, राइट? तो यूट्यूब पे हर जगह उसकी एड आना स्टार्ट हो जाएगी. दैट्स अ मार्केटिंग कॉस्ट. सो बेसिकली अब वो मार्केटिंग कॉस्ट पे कहीं ना कहीं वो कस्टमर से ही उसका पैसा लेते हैं, राइट? तो ऑल दोज थिंग्स दैट हैपन अराउंड अस, राइट, हर जगह कहीं ना कहीं नाउ वी आर यूजिंग this modeling a lot, right? So कि pricing क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की जिससे कि हमारी मार्केटिंग कॉस्ट प्रॉफिट वगैरह सब 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 चीजें उसमें compensate हो सके. So now logistic regression is something where we talk of that, where we have to predict the output in the form of yes or no. Okay, like for example, we have a small data set over here कि based on the sugar level we would like to predict कि किसी बंदे को डायबिटीज होगा या नहीं होगा, राइट? तो शुगर लेवल पे हम लोगों को प्रेडिक्ट करना है yes और no. So if you remember, हमने एक ऐसा छोटा सा ईडे का भी पूरा केस स्टडी किया था. इन दैट ओवर देयर वी डिड द केस स्टडी जहाँ पे हमने किया था वो ग्लूकोमीटर वाला कि दे वांटेड टू फिगर आउट कि बंदा प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं. तो वहाँ पे अगर देखो तो हमारा आउटपुट था वो 0-1 की फॉर्म में था कि कौन से लोग किसको डायबिटीज है किसको नहीं है. सो on that data also we can make a model to predict whether a person will be diabetic or not, right? So let's just give me 1 second.
Okay. So now the example that I shown you, right? Whether we are trying to predict whether a person will have diabetes or not. तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा ना? You will have to start thinking now in terms of probabilities, right? So if you remember हम लोगों ने stats में probabilities के ऊपर भी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी. क्या probability कैसे निकालते हो, right? Base हम लोगों ने डिस्कस किया था. So now probability, this is the reason you all study probability. क्योंकि अब आप देखोगे linear यहाँ पे basically logistic regression is what the topic जहाँ पे आपका probability से concept use होता है basically, right? So I'll just come to this. Let me give you a small example over here, right? Let's take a small example. अब यहाँ पे अगर आप देखो दो हमारे पास यहाँ पे दो डेटा सेट्स हैं, right? In one data set, in one of the data sets, what we are talking कि हमें बंदे की एज पता है, बंदे का जेंडर पता है, और हमें रेवेन्यू प्रेडिक्ट करना है कि वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है. और दूसरा डेटा सेट है जहाँ पे हमारे को एज दी हुई है और जेंडर दी हुई है, और हमें प्रिडिक्ट करना है, बेसिकली हमें चेक करना है कि उसने सब्सक्रिप्शन लिया या नहीं लिया, राइट? सो इन टेबल 1 व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द कॉन्टिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल. इन द टेबल 2 वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सब्सक्रिप्शन, कि बंदा उस चीज को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड एज. सो दिस एग्जांपल बिकम्स एन दिस इज समथिंग दैट वी विल हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ लीनियर रिग्रेशन, और जो ये वाला एग्जांपल है वी विल हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि नेटफ्लिक्स है, उसने अपना एक मार्केटिंग एक्टिविटी करी और उसने क्या किया 500 कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट किया, और ऑन द बेसिस ऑफ एज दे वर ट्राइंग टू फाइंड कि किसने सब्सक्रिप्शन लिया और किसने नहीं लिया, राइट? सो बेसिकली सब्सक्रिप्शन ऐसे कि बंदे ने उसका जो मंथली था वो पे उसके लिए किया या नहीं. सो ऑन द बेसिस ऑफ एज नाउ वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट वेदर अ पर्सन इज गोइंग टू बाय इट और नॉट. तो एक चीज बताओ मुझे, क्या मैं यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लगा सकता हूँ? So can I apply a linear regression over here? No, sir. Yes, sir. Yes, कैसे? सर लीनियर रिग्रेशन मेनली फिट ही तो करता है किसी पे भी, तो इस पे भी अप्लाई हो ही सकता है. तो linear regression में प्रॉब्लम क्या होती है आपकी कि जो आउटपुट है वो 0 to 1 में नहीं आएगा. आउटपुट 1 से ज्यादा भी आ सकता है और 0 से नीचे भी आ सकता है, होगा ना? अब linear regression आपको 0 में आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि वो अज्यूम करेगा कि जो सब्सक्रिप्शन है ये कैटेगोरिकल डेटा नहीं है, न्यूमेरिकल डेटा है 1 और 0. तब वो प्रेडिक्ट अगर वो करेगा तो कहीं पे वो 0.2 दे सकता है, हो सकता है माइनस 0.1 दे दे, 2.1 दे दे, 1.4 दे दे, हो सकता है ये. सर अगर टारगेट वैल्यू 0 1 में ही है तो फिर वो माइनस में वैल्यूज देगा? लेकिन देगा ना, तो आप वो तो इक्वेशन क्रिएट नहीं, करेगा. अगर ट्रेन ही 0 1 पे हुआ है तो क्या वो नेगेटिव में वैल्यू देगा रिग्रेशन में? हाँ देगा, क्यों नहीं दे सकता? तो मॉडल आपको ओके. तो आपकी इक्वेशन बनती है ना, इक्वेशन में आप सपोज करो आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते ना आपकी, आप ये थोड़ा बोलोगे देखो मॉडल किस पे बनाएगा, वो मॉडल बनाएगा आपके इस नंबर के ऊपर. अब आपकी कोई एज आपने देखो इसमें दी हुई है 18 तक, आपने कोई एज छोटी दे दी उसमें, ये 14 साल का जो स्टूडेंट बंदा है वो क्या आपका मॉडल, वो आपका क्या कहते हैं, देखो लीनियर तो लीनियरली चलेगा ना. वो अगर वो अज्यूम कर रहा है कि अगर एज बढ़ रही है तो सब्सक्रिप्शन की वैल्यू बढ़ रही है, या फिर एज अगर कम हो रही है तो सब्सक्रिप्शन की वैल्यू कम हो रही है, राइट? या फिर इनवर्सली डायरेक्टली, तो लीनियर वे में चलेगा ना वो तो आपका मॉडल. तो यस सर. कि अगर एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज बढ़ रही है, तो अगर आपने एज कम करी तो आपकी सब्सक्रिप्शन की वैल्यू को कम करेगा. तो हो सकता है कि अगर आपने ज्यादा कम कर दी वो एज की वैल्यू, तो वो नेगेटिव में भी जा सकती है, क्योंकि 0 से नीचे तो नेगेटिव भी जाएगा अगर वैल्यू छोटी होती है तो, राइट? ये 0 और 1 हमने रेंज थोड़ा डिफाइन करी है, कि हमने थोड़ा बोला कि अब अगर हम सैलरी प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो हमने एक डिफाइन कर दिया कि बॉस ये सैलरी और ये सैलरी आपकी अपर और लोअर लिमिट है, इससे बाहर हो नहीं सकती. आप तो जब डेटा प्रेडिक्ट करोगे अपना, जब भी आप अपना कोई टेस्ट डेटा दोगे उसके अंदर तो आप बड़े छोटे नंबर कुछ भी डाल सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको करेक्ट आंसर देना है, और अब उसके अकॉर्डिंगली उसने प्रेडिक्ट करनी है आपकी जो कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज की प्रेडिक्शन है. तो डेफिनेटली आपकी वैल्यूज नेगेटिव में जा सकती हैं अगर आपकी एज छोटी चली गई इसमें, राइट? और आपने ज्यादा एज बड़ी दे दी तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव उसकी 1 से ऊपर भी टाप जाएगी, इट विल जंप 1. सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम विल हैपन, ठीक है? एंड एक्चुअली लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपका लीनियर रिग्रेशन ही है, व्हिच यू विल जस्ट गेट टू नो राइट नाउ, right? So what I can do is for the above model we can use linear model. Only problem we will face in that is that the dependent variable is binary instead of continuous,
राइट. सो इफ वी वांट टू यूज अ लीनियर मॉडल फॉर दिस प्रॉब्लम, अगर हम इसके लिए अपना लीनियर मॉडल यूज करते हैं तो हम पहले अपने येस और नो को 0 और 1 में चेंज कर लेंगे. राइट. तो जहां पे मैं कह रहा हूं कि अगर ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 1 की तरफ जा रही है तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ यार उसकी लाइक्लीहुड ज्यादा है कि वो बंदा खरीदेगा. राइट. सो इफ यू सी इन द लॉजिस्टिक रिग्रेशन वी यूज अ वर्ड लाइक्लीहुड. अब लाइक्लीहुड हम क्यों यूज कर रहे हैं? एनीवन हु कैन टेल मी? Probability. Probability. हाँ जी, Probability. प्रोबेबिलिटी. राइट. तो आपने देखो जब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था तो यहाँ पे अगर आपने देखा हम लोग क्या पढ़ते थे, यहाँ पे 0 to 1 की जो प्रोबेबिलिटी होती थी हमारी. राइट. सो वहाँ पे हम यही बोलते थे दैट द बेसिकली this likelihood of the event to happen, likelihood of that event not to happen. हम ये नहीं बोलते हैं कि अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब कि वो होगा ही नहीं, या फिर हम ये नहीं बोलते हैं कि अगर 1 आएगा तो मतलब वो होगा ही होगा. राइट. इट्स द लाइक्लीहुड कि वो होगा, ज्यादा चांसेस है कि वो होगा, और 0 का मतलब है कि ज्यादा चांसेस है वो नहीं होगा. राइट. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड लाइक्लीहुड इन दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन. राइट. हम ये नहीं कह रहे हैं कि दैट व्हेन द वैल्यू इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 वी आर सेइंग दैट द person will buy it. No. So the chances of buying that are more. Okay. So now अगर आपने इसके ऊपर अपना मॉडल बनाया, राइट, लेट्स अज्यूम आपने अगर इस पर अपना मॉडल क्रिएट किया तो आपका सब्सक्रिप्शन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो आपने लिखा y इक्वल टू mx प्लस सी. राइट. बेउली इक्वेशन बना ली हमने. आपकी इक्वेशन आ गई y इक्वल टू mx प्लस सी. अब now let's see what will happen if a linear model is created. अगर अपना लीनियर इक्वेशन बनाओगे, दिस इज हाउ द फाइनल इक्वेशन विल कम आउट. दैट सब्सक्राइब इज इक्वल टू -0.86 प्लस 0.03 इनटू एज. तो हमने अपना लीनियर मॉडल बना दिया और हमारे पास लीनियर इक्वेशन निकल कर आ गई. ओके. आई होप ऑल ऑफ यू आर विद मी अप टिल हियर. Yes, sir. Yes, sir. राइट. ठीक है. So now the probabilities are something that are bound to be between 0 to 1. राइट. अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है. अगर आपने एज की डेटा की एज देखते हो, अपने डेटा की आप वैल्यूज देखोगे तो जैसे कि राइट माना साहब कह रहे थे कि 0 to 1. ठीक है. सो एवरीथिंग इज बीन कवर्ड. तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा है उसमें एज 18 से ज्यादा है और 62 से कम है. तो द यंगेस्ट कस्टमर इज ऑफ 18 years and the oldest is of 62 years. It makes sense to develop forecasts for observation similar to the ones we have in our data. राइट. लाइक अब मतलब अगर आपकी डेटा की रेंज इतनी है, आप उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाते हो अपनी. सो लेट अस से कि हम अपन उसमें कुछ एज के नंबर डालना स्टार्ट करते हैं. राइट. लेट अस अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 40-year-old person is 40-year-old person सब्सक्राइब इज. तो मैंने एज की वैल्यू डाली 40. राइट. तो मेरी क्या वैल्यू निकल कर आई? 0.33. तो मैं 0.33 से अज्यूम कर सकता हूँ कि चलो ठीक है यार ये बंदा शायद नहीं खरीदेगा. राइट. दिस इज व्हाट आई विल से, बिकॉज़ 0 to 1 वैल्यूज में 0 to 1 दी हुई थी प्रोबेबिलिटी की, और मैंने अज्यूम किया कि वैल्यू क्योंकि 0 के 0.5 से कम है, सो आई एम अज्यूमिंग दिस पर्सन विल नॉट बाय. लेकिन अब इसी इक्वेशन में अगर मैंने अपनी वैल्यू डाली 26 एंड 57, अगर आप ये वैल्यूज इसमें डालोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी -0.005, और अगर आपने 57 डाली तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 1.01, जो कि आपकी उस प्रोबेबिलिटी की रेंज से बाहर निकल जाएगी. राइट. ये डेटा आपकी प्रोबेबिलिटी की रेंज से बाहर चला गया. Okay. So now we just have to take care of this thing over here. Right. So now what we have to do over here is we just have to within यहाँ पे हमारा जो नंबर जो 0.05 से ऊपर जा रहा है और ये 1.1 से ऊपर 0 से जो नंबर नीचे जा रहे हैं और नंबर 1 से ऊपर जा रहे हैं, व्हाट वी हैव टू डू इज अब हमारे को अपनी इस लीनियर इक्वेशन को कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना है इसके अंदर कि ये जो वैल्यू है ना 0 और 1 से ऊपर ना जाए. राइट. सो दिस इज वेयर द सिग्मॉइड कर्व कम्स इन. अब देखो अगर आप सिग्मॉइड कर्व को अच्छे से समझोगे तो उसका टेक्निकली मीनिंग यही है. वो एस कर्व कैसे बना कि अगर आप लीनियर इक्वेशन बनाते हो तो आपकी लीनियर इक्वेशन ये आपका 1 का पॉइंट था, यहाँ पे आपका 1 था, यहाँ पे आपका 0 था, ये 0 था, ये 1 था. तो आपकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करनी चाहिए. लेकिन आपका लीनियर मॉडल क्या कर सकता है कि वैल्यू को 0 से नीचे दे सकता है और 1 से ऊपर दे सकता है. ये हमारे इस बेसिकली इसके साथ प्रॉब्लम है. तो हमने क्या किया, हमने अपने मॉडल के अंदर कुछ ऐसी सेटिंग करी कि अगर वैल्यू 1 से ऊपर जा रही है तो वो 1 हो जाए,
और अगर वैल्यू 0 से नीचे जा रही है तो वो 0 मान लेते हैं हम उसको, राइट। हम कहेंगे अगर वैल्यू 1 से ऊपर जा रही है तो 1 है, और 0 से नीचे जा रही है तो 0 है। तो हमने उसकी एक कैपिंग कर दी। तो इसी वजह से आपका ये, इस बेसिस पे आपका ये एस कर्व बन के आता है कि आपकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और जो वैल्यूज 1 से ऊपर थी वो हमारी फ्लैट हो गई, और जो 0 से नीचे थी वो फ्लैट हो गई। तो यहाँ पे आपका ये एस कर्व, सिग्मॉइड कर्व निकल कर आया है। दैट इज हाउ दिस sigmoid curve is created or is defined. Making sense? अब definitely I cannot use the same linear equation in the logistic model also, right? अब same equation तो मैं use नहीं कर सकता. So what we do is logistic regression is a statistical model for analyzing the data set in which there are one or more independent variables that determine a binary outcome, right? And it is something that we use to predict the output in the form of yes or no. अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज, जो हमारी जनरल एक लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन थी, वी आर गोइंग टू मॉडिफाई दिस इन सच अ फैशन कि अभी हमारे को 0 और 1 से ऊपर आउटपुट उसके बाहर ना दे, राइट। सो फॉर दैट व्हाट वी डू इज, नाउ यू सी ओवर हियर द सेम थिंग दैट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। तो जो वैल्यूज हमारी 1 से ऊपर जा रही है या फिर 0 से नीचे जा रही है, राइट, तो हमारी जो वैल्यू 1 और 0 उस रेंज से बाहर जा रही है तो हम उसको कैप ऑफ कर देते हैं। Now we just cap this value up. The one that shows with those breaks in this section, तो हमने इसको इंजीनियर कर दिया बेसिकली। इफ यू सी, जो 1 से ऊपर है वहाँ फ्लैट हो गई, और 0 से नीचे यहाँ फ्लैट हो गई। तो इससे क्या होगा, अब हमारी वैल्यू 0 1 की रेंज से बाहर नहीं जाएंगी। नाउ हाउ डू वी डू इट? अब इस चीज को हम ठीक कैसे कर रहे हैं, राइट? हमारे को क्या करना है, अपनी लीनियर इक्वेशन को सिर्फ वी हैव टू वर्क इन सच अ वे कि वैल्यू 1 से ऊपर और 0 से नीचे ना जाए, राइट। तो हम अपनी उसी लीनियर इक्वेशन को व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू modify it. Right now, how do we modify it? That is where we are going to understand this. पहली कंडीशन क्या है मेरी, कि मेरा आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आए, यानी वो 0 से ऊपर आए। तो अब किसी नंबर को आप पॉजिटिव कैसे कर सकते हो? सर मॉड लेके। मोड लेकर, यस या सर। फिर उसका स्क्वायर लेकर। अगर आप किसी नंबर का मॉड ले लोगे या स्क्वायर कर दोगे तो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, राइट। और एक और तरीका होता है, वो होता है एक्सपोनेंशियल। आप उसका एक्सपोनेंशियल भी ले सकते हो, ई रेज टू द पावर। ई रेज टू द पावर आप करोगे तो नंबर कभी नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले हमने लीनियर इक्वेशन को क्या किया, उसका एक्सपोनेंशियल ले लिया। हमने क्या किया, उस नंबर का एक्सपोनेंशियल ले लिया। ई रेज टू द पावर, जो आपकी लीनियर इक्वेशन थी वो आपकी ई रेज टू द पावर में चली गई, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, वो नंबर जो है आपका वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। और अब हमें मेक श्योर करना है कि वो नंबर 1 से ऊपर ना जाए। तो 1 से ऊपर ना जाए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उस नंबर को अपने आप से ही +1 से डिवाइड कर दिया, राइट। अगर आपका नंबर 8 है और मैं 8 को डिवाइड कर दूं 8 + 1 से, तो वो कभी भी क्या कहते हैं 1 से ऊपर नहीं जाएगा नंबर, राइट। 8 को मैंने डिवाइड कर दिया 8 + 1 से, राइट। तो ये नंबर आपका 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे की, हमने कहा पहले उसका नंबर एक्सपोनेंशियल कर दिया ताकि वो 0 से नीचे ना जाए, और फिर उसको अपने आप से डिवाइड कर दिया और उसमें +1 कर दिया, राइट। नाउ जिसकी वजह से क्या हुआ, बेसिकली जो हमारी इक्वेशन थी, अब वो 0 to 1 के बीच में ही लाई करेगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। Making sense, all of you, what we have done? Please just try to read this equation once, just this slide. Yep. Plus, please take a look.
सर सर हाँ जी, सर ये जो p इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल, यही हमारा सिग्मोइड फंक्शन होता है ना? क्या चीज? p इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है exponential of beta 0 plus beta 1 into h. No, below this. It must be less than 1. Below. Below this. यहाँ पे सर वो फॉर्मूला लिखा, हाँ ये सर सिग्मोइड फंक्शन है ना? अभी ये सिग्मोइड फंक्शन पूरा बना नहीं है। अच्छा, अभी देखो, अभी क्या है बेसिकली, ये जो हमने बनाया बेसिकली ये e raised to the power चला गया, राइट? ये सिग्मोइड फंक्शन ही है बेसिकली, बट अभी आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि आपने एक साइड e कर दिया तो यहाँ पे आपने इसको खाली छोड़ रखा है, राइट? तो अभी आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अभी सिर्फ एक साइड पे करी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो दूसरी साइड भी करनी पड़ेगी ना, ओके सर। है ना? पर ये है सिग्मोइड फंक्शन, इसको सिग्मोइड फंक्शन ही बोलते हैं बेसिकली। तो अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। तो क्या करते हैं ये आप इस चीज का, ताकि आप जो इक्वेशन जो आपने अभी एक्सपोनेंशियल लिया है इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका लॉग लेते हैं, क्योंकि लॉग और ई एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, राइट? सो व्हाट वी डू देन इज ओवर हियर दिस द प्रीवियस जो आपकी इक्वेशन थी, उसके बाद हम लोग उसका लॉग ले लेते हैं, वी टेक अ लॉग नेचुरल। जो आप लॉग नेचुरल ले लोगे दैट बिकम्स, तो आपकी जो इक्वेशन थी जो आपकी e रेज़ टू द पावर की थी वो वापस आपकी लॉग की फॉर्म में आ जाती है, राइट? so this finally becomes your logistic regression equation। तो आपकी logistic equation ये होती है बेसिकली। तो जो आपका ये हमने जो फंक्शन बनाया है, हाँ, इसको हम लोग सिग्मोइड फंक्शन, क्योंकि सिग्मोइड फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज इफ यू सी ओवर हियर, तो जो सिग्मोइड फंक्शन लाइक इफ यू से हम उससे क्या कर रहे हैं, वैल्यू को 0 to 1 के बीच में कैपिंग कर रहे हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ये हमारे को उस चीज को हेल्प करने में, हमारा उसी चीज को करने में हेल्प कर रहा है। तो ये हमारा सिग्मोइड फंक्शन होता है। ठीक है, आप लोगों का जो हैकेथॉन हुआ था मेरे ख्याल से, उसमें जो आपका एक जो हैकेथॉन में जो वो था आपका जो प्रोजेक्ट जो करना था उसमें, वो शायद टाइटैनिक का डेटा सेट था, राइट? एक टाइटैनिक का डेटा सेट था, उसमें आग वाला किसने करता नहीं था, आप लोग शायद जाने होगी, आप लोगों का सिर्फ पाइथन में तो उसमें टाइटैनिक का, उसमें क्या कहते हैं वो था डेटा सेट जिसमें आपको प्रेडिक्शंस करना था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु डाइड और सर्वाइव। तो वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर ही था आपका हैकेथॉन। तो टाइटैनिक का ही हमारे पास कहते हैं डेटा सेट था जिसके ऊपर आप लोगों ने प्रेडिक्शन किया। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे पहले मुझे बताओ किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ डाउट आपको? ऑल क्लियर? Yes, sir. So if I ask you a quick question over here, आप इसमें लॉजिकल रिलेशन में अपनी वो कैसे चेक करते हैं, कहते हैं अपनी एक्यूरेसी? बस एक सेकंड, एक
plus in the meantime आप लोगों का वो चल गया, LMS चल गया आप लोगों का? Yes, sir. Right, so आपको लोगों का LMS चल गया class? तो आप लोग प्लीज वहां से ना अपना वो डाउनलोड कर लोगे, कहते हैं एक आपके पास वहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आपका एक वो होगा, जो कहते हैं प्रोजेक्ट, डेटा सेट और सब चीजें होंगी आपकी उसमें, so प्लीज डाउनलोड दैट. Plus, have you all downloaded this data set? So diabetes है ना? Right, so if you will take a look at it, your data here. So
again we have to basically work on an idea where we have to kind of predict whether a person is diabetic or not, right? तो अगर कुछ डेटा दिया होगा इसमें BMI से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, राइट, ग्लूकोज और आपका ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, तो ये आपका डेटा दिया होगा इसमें. On the basis of that, you actually have to predict whether a person will be diabetic or not, right? तो आपको अपने मॉडल के अंदर पूरी एक्यूरेसी चेक करनी है, आपका ROC कर्व और प्रिसिजन सब चीजें हम लोग इसमें सब चीजों पर हम लोग वर्क करेंगे इसलिए. सर सर जी, सर मॉड्यूल किस नाम से है? तो होगा ना आर लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन होगा उसमें. ओके सबको मिल गया, डेटा मिल गया सबको. This class. Yes, sir. यस सर. So get started. अब थोड़ा सा just load your data and do that the same, right? Now initial stuff will remain the same. जो हम लोगों ने linear में किया है वही same चीज यहाँ पर भी चलेगी हमारी. Okay. So we'll start over here, right? The data is of National Institute of Diabetes, right? जहाँ से हमारा कोई data set हमने basically retrieve किया है, right? So just some quick information on that. And technically, what we have to do is, so if I just go back to the problem statement again,
राइट. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, ये आपको इस डेटा के ऊपर व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट काइंड ऑफ, और कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट. सो 9 8 बेसिकली इंडिपेंडेंट है और एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है. So using all these data set, we have to predict whether a person will be diabetic or not. So let's get started with this. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, let's first of all pregnancies दी हुई हैं आपको. So if you will compare it with the data set, so pregnancies, this is the numeric data, right? Glucose, this is the numeric data. If you see blood pressure, numeric data. Skin thickness, numeric है. Insulin, right? Again numeric data. BMI, numeric. Diabetes pedigree function, numeric. Age, outcome, binary. So if you see over here, सारे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो numeric function दिया हुआ है हमारे पास. सर हाँ सर इंट और नम में क्या डिफरेंस है? किसमें? इंट और नम. समझा नहीं, क्या कह रहे हो? सर इंट INT और NUM नम. int, see नंबर जो होता है ना, बेसिकली नंबर इज लाइक उसमें आपका डेसिमल पार्ट और इंटीजर पार्ट दोनों कवर हो जाते हैं. इंट का मतलब होता है बेसिकली सिर्फ द होल नंबर्स विदाउट डेसिमल्स. ओके ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सी आपके देखो जो आपका एक हम लोग जैसे अब हम लोग एक टेम्पलेट के ऊपर बात भी कर रहे थे कल, राइट? तो अगर आप देखोगे तो टेम्पलेट आपका बिल्कुल सेम है. आपने अपना डेटा टाइप चेक किया, आपने स्टैटिस्टिकल समरी देखी, अपने फीचर्स एक्सप्लोर किए, जीरो मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट किया, आउटलायर्स को ट्रीट किया, कोरिलेशन चेक किया, फीचर सिलेक्शन किया, डेटा को स्टैंडर्डाइज किया और अपना मॉडल प्रिपेयर कर दिया, राइट? सो इफ यू सी ओवर है, बिल्कुल ये आपके जो स्टेप्स हैं वो कहीं पे भी चेंज नहीं होते हैं. तो प्लीज ये सारे जो स्टेप्स है ना, आप इनको थोड़ा सा अपने माइंड में रखना हमेशा, क्योंकि जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाओगे, सो दे आर गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाट इज द फ्लो ऑफ दैट मॉडल दैट यू बिल्ड. तो आप इसी तरीके से स्टार्ट करते हो, अपने डेटा टाइप्स को चेक किया, अपने अपने सब चीजों को जो यहाँ पे हमने लिखी हुई है, दे विल रिमेन सेम ऑल अक्रॉस. सर, हाँ जी. जो हमारे क्लासिफिकेशन मॉडल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर प्रिडिक्शन है या फ्रॉड डिटेक्शन है, तो ये सारे जनरली काफ़ी इम्बैलेंस डेटा सेट होते हैं ना इनके अंदर. मतलब पॉजिटिव इंस्टेंसेस बहुत ही कम होते हैं, नेगेटिव थोड़े ज़्यादा होते हैं. अगर मैं उसका लूँ कैंसर प्रिडिक्शन का तो हाँ, पॉजिटिव आपके ज्यादा होता है कि बेसिकली जो आपके लोग जो होंगे उसमें डेटा में वो ज्यादा होंगे जिनको कैंसर नहीं है, हाँ और जी. तो होगा वो कम होता है. हाँ, वो आपका वो प्रोपोर्शन आपका उसमें रहता है हमारा. ऐसे में तो जो हमारी एक्यूरेसी जितनी भी निकल के आएगी वो तो बायस ही रहेगी ना. अगर हम 90% भी ले आते हैं तो वो तो नेगेटिव की ही रहेगी ना. नहीं, ऐसा नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत उसके एक्यूरेसी भी इम्पैक्ट आता है, बिकॉज एज वी सेड, राइट, आपका रियल टाइम सिनेरियो में आपको मतलब, क्योंकि अब डेटा के आपको देखो चांसेस हैं ही ज्यादा ये कि आपके पास कि अगर आप उसकी फ्रॉड डिटेक्शन की बात करते हो, राइट, अगर फ्रॉड डिटेक्ट आपको करना है तो बेसिकली फ्रॉड डिटेक्ट में बहुत ही माइनर ऐसी कुछ इंस्टांसेस होंगे जहाँ पे बंदा पे नहीं कर पा रहा है, आपका जो लोन को रीपे नहीं कर पाएगा, राइट? तो वो डेटा का नेचर ही ऐसा है कि आपके पास मतलब कि ऐसा नहीं है कि उससे आपका जो मॉडल है वो इम्पैक्ट हो जाएगा, एक्यूरेसी में कोई डिफरेंस आएगा. तो जो आपकी मतलब चीजें होती है, तो देखो ना इसमें क्या हो रहा है, आप लाइक्लीहुड देख रहे हो, राइट? तो आप देखो अगर आप इसके अंदर, तो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 0.6 भी आ रही है तो आप उसको 1 मान रहे हो, राइट? और अगर आप उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 भी आ रही है या फिर 0.45 भी आ रही है तो आप उसको 0 मान रहे हो. तो बेसिकली ये भी जो लाइक्लीहुड है ना, तो इस लाइक्लीहुड के ऊपर हम प्ले अराउंड करते हैं बेसिकली. तो आप इसको ऑल्दो हम इसकी एक्यूरेसी जो देखते हैं 0 1 में देखते हैं, बट अल्टीमेटली जब आपको कुछ और डीपली जाना होता है उसके अंदर, तो फिर आप डेफिनेटली उस प्रोबेबिलिटीज को ही चेक करते हो कि कितनी प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, फिर उसके बेसिस पे आप लोग उसको फर्दर उसका यू कैन डू सम चेंज योर मॉडल एंड देन सी कि आपने उसके जगह डिसीजन ट्रीज लगाकर देखा और आपने रैंडम फॉरेस्ट लगाकर देखा, फिर आप उन मॉडल्स को कंपेयर करते हो कि कहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बेटर हो रही है, इम्प्रोवाइज हो रही है, राइट? अब डेटा तो हम चेंज नहीं कर सकते, right? What we can only do is we can just change the technique in order to see if we can better achieve that result. Getting it? But your point is right कि देखो थोड़ा बहुत आपको उसमें डेटा में बायसनेस आता ही आता है थोड़ा सा. आपको जब भी जनरली आप देखोगे तो आपके पास 60-70% डेटा हमेशा आपका पॉजिटिव साइड पे आएगा, 10-20% ही आपका डेटा जो आएगा वो नेगेटिव साइड पे आएगा.
अब उसी को ठीक करने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं, राइट? यू कैन क्रिएट अ डमी डेटा ऑल्सो। बहुत लोग क्या करते हैं अपने मॉडल के अंदर कुछ डमी डेटा क्रिएट कर देते हैं नो के लिए, कि ताकि नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर पे आ जाए, लेकिन दैट इज नॉट एन एडवाइजेबल टेक्निक, क्योंकि उसमें अगेन देयर आर चांसेस कि आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो फॉल्स एक्यूरेसी आ सकती है उसमें। ओके, सो एवरीवन, सो आपके पास सी द पैकेजेस दैट यू ऑल हैव टू इंस्टॉल, सारे तो आपके पास होंगे पहले से ही, सिर्फ एक ROC है जो आपको नया पैकेज इंस्टॉल करना है, which will help us in creating the ROC curve. So let's get started. So I hope इतना तो आप लोगों ने भी पहले से ही कर लिया होगा, right? Data has been loaded. तो कैसा लग रहा है आपको ऑनलाइन क्लासेस में? क्या लगता है ऑनलाइन वर्क क्लासेस पर बेटर है या फिर क्लासरूम सेशंस? सर लास्ट वाला पैकेज कौन सा था? ROC IT. सर क्लासरूम बेटर था। क्लासरूम? यस सर। Done, data loaded. Everyone, please load this data. अदो उसके ऊपर अपने क्विकली समरी चेक करो अपने डेटा की, राइट? Once the data is loaded, check the summary of your data. Missing values, ये सब चीजें आप लोग you can really try this out. सर इसमें मिसिंग वैल्यूज नहीं है। Right, so STR function क्या करता है? Anyone? STR stand for Sir,
स्ट्रक्चर देता है सर, कौन सा डेटा टाइप है एंड वैल्यूज। कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, आपको हाँ। उसका structure देगा। So this is like you were asking, देखो आपके इंटीजर है तो सारा डेटा आपका विदाउट डेसिमल है, राइट, और नंबर न्यूमेरिक इट हैज डेसिमल। You can see the length and number of rows, right? You just want to check the rows and all, so you can just try some basic functions, right? नौ वेरिएबल है आपके पास, नंबर ऑफ रोज कितना है हमारे पास 768। कॉलम नेम्स देखने अगर आपको अपने डेटा के ग्लिम्स करना है आपको, राइट, सो यू कैन यूज दैट। ग्लिम्स किसमें मिलता है आपको, ग्लिम्स कौन सा पैकेज का फंक्शन है? हाँ, क्या क्वेश्चन था? ग्लिम्स सर सिमिलर टू प्रिंट होता है। सिमिलर टू एसटीआर होते हैं बेसिकली, अच्छा। राइट। तो ये आपको होता है डीप लेयर पैकेज, जस्ट सिमिलर टू दैट। जो एसटीआर काम करता है वही वही काम ये आपका ग्लिम्स करता है। इट्स अ पार्ट ऑफ डीप लेयर पैकेज। कैन चेक द स्टैटिस्टिकल समरी, जैसे हम लोगों ने कल किया था। सी बिल्कुल इट्स द सेम टेम्पलेट, नथिंग इज डिफरेंट, और ये सारे आपका सब में सेम रहेगा। आप जो डिवीजन ट्रीज करेंगे वहां पे भी आपका सेम रहेगा। आपके जितने वेरिएबल्स हैं हमने उसका देखो, हमने सबका उसका वो निकाल दिया। प्रेगनेंसी के ऊपर आपने मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, मीडियन, राइट, ग्लूकोज मीन, मीडियन, डायस्टोलिक, ट्राइसेप्स, इंसुलिन। Now what we will do is we will start exploring the features, right? Five-way analysis, unit analysis हम लोग start करेंगे. So we start exploring the features now. So I made a histogram on pregnancy.
and everyone जब वो सारे न्यूमेरिक वैल्यूज सब लोग बना लोगे अपना एज पे, ग्लूकोज पे, डायग्नोस्टिक पे, just let's make it up. Right, so we can see the rate of age. We have more people with young age. सर Yes. सर इसके अंदर हम सिग्मॉइड फंक्शन यूज कर रहे हैं जो खुद ही 0 to 1 में वैल्यूज कर देगा, तो लॉजिस्टिक में फीचर स्केलिंग इम्पोर्टेंट है। फीचर स्केलिंग होती है इसमें करनी पड़ेगी। फीचर स्केलिंग आपकी यहाँ होगी और प्लस जो लीनियर रिग्रेशन था, जो एलएम फंक्शन था, वो तो ऑटोमेटिकली कर लेता है फीचर स्केलिंग, बट ये जीएलएम फंक्शन नहीं कर पाता उसके स्केलिंग। तो विल हैव टू डू दैट। तो स्केलिंग वो कब कर रहा है, वो जब आप मॉडल बिल्ड कर रहे हो तो वहां पे जाके आपके इक्वेशन के ऊपर अपना वो आपकी सारी डेटा को चेंज कर रहा है। तो फीचर स्केलिंग इज द पार्ट ऑफ दैट एवरी डेटा सेट, राइट, कि आपका जो डेटा है वो सेम लेवल पे दिखे, तो चाहे वो लीनियर करो चाहे लॉजिस्टिक करो, वो तो आपका हर जगह यूज होगा ही होगा। You can please try to make the variables on this charts. maybe हमारे पास है, just try to explore it up. So let's take biceps. We'll check for the missing data. इसका जरूर चेक कर लेते हैं पहले। Zero and one पे आप देखोगे तो we can make a table also on this table. So you can see again, right, positive one. उसका डेटा हमारे पास कम है basically. Check the missing values. Where is our data behind it? So we'll check the outliers after that, right? आपके पास डेटा में क्या है यहाँ पे? Missing values तो आपके पास नहीं है, but you have a lot of zeros that you are given in the data, right? So you can see over here from blood pressure histogram, we observe that some people have value 0. Diagnostic blood pressure is not 0, so we need to fix this 0. Glucose level में भी आपको 0 मिल रहे हैं, right? So as per the data, the glucose level can harm the body, and skin thickness also not be 0 with minimum thickness in the body 0.05 millimeters. So the 0 value in the thick is, 0 value in the skin thickness variable is very much, and BMI or insulin में भी आपके पास 0 values आ रही हैं, right? So we have a lot of zeros that you can all see. So what are we going to do over here is, what we are doing now in this case is, we are just जहाँ जहाँ पे आपकी value 0 आ रही है, we are just going to replace it with NA, right? Not available.
Everyone, are you able to do it? यहाँ तक आपने कर लिया सब लोगों ने this part of this of making the data set, creating the histograms, checking the missing values. Yes, sir. Right, so now like we were discussing, right? So what we are doing over here is, so we have a lot of zeros that we see. Now what we need to do now is we need to treat those missing values over here. Now in order to do that, what we are doing over here is we are first going to replace all these zeros with any values, right? We are going to replace all the zeros with any, then we will start treating them. Because zero अब आपके देखो, it could happen that आपके पास जो data set आया था तो उसमें बाय मिस्टेक या कुछ रीजंस की वजह से आपकी जो ब्लैंक वैल्यूज थी वो आपकी जीरो से रिप्लेस हो गई. सो दैट कैन आल्सो बी अ प्रॉब्लम, राइट? सो वी हैव टू डील दोस zeros in the data set. So what we do is I bring that, so we are dealing with the zeros. So if we will take a look at your data set, you all would have seen also this thing कि आपके बहुत जगहों पे zeros आ रहे थे आपके, राइट? तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो यू सी स्किन थिकनेस जीरो आ रही है, राइट? नाउ स्किन थिकनेस कैन नॉट बी जीरो, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू आपकी होगी, राइट? सेम वे यू सी ओवर हियर दैट इंसुलिन इज जीरो, राइट? बीएमआई इज कमिंग एज जीरो. अब बीएमआई जीरो कैसे हो सकता है, राइट? सो यू हैव दिस zeros that we see which are available at lot of places. अब एज में नहीं है, एज क्लीन है आपकी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. डायबिटीज में अगर आप देखोगे तो डायबिटीज में भी नहीं है. बीएमआई में अगर आप चेक करते हो यू हैव बीएमआई में है, इंसुलिन में है, राइट? यहाँ पर है, ब्लड प्रेशर में है, राइट? ग्लूकोज में है, और प्रेगनेंसीज में यू कैन हैव, राइट? जीरो प्रेगनेंसीज. नाउ दैट इज पॉसिबल. सो व्हाट वी डू इज लेट्स डील द zeros over here. सो आपका ग्लूकोज, डायस्टोलिक, ट्राइसेप्स, इंसुलिन और बीएमआई यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, तो हमने इसको क्या किया, वी आर रिप्लेसिंग दिस विद एनी. इसका नाम चेंज कर दिया है, डेटा टू, द नेम ऑफ द डेटा सेट इज चेंज्ड. Now you will see the values, the data has been updated to n. अगर अब आप अपनी चेक करोगे, आपके पास डेटा में बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज आ गई होंगी, राइट? नाउ यू विल हैव लॉट्स ऑफ मिसिंग वैल्यूज क्योंकि हमने उसको रिप्लेस कर दिया है. वी हैव नाउ मेड, वी हैव जनरेटेड मिसिंग वैल्यूज इन अ डेटा सेट. ओके, सो गाइस, आई थिंक मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज दूंगा आज, बिकॉज आई हैव समथिंग टू टेक केयर ऑफ. हम लोग यहाँ से कॉल कंटिन्यू करें, राइट? कल अपना सेशन रखते हैं अपना 10 to 1 एंड लेट्स कीप इट फ्रॉम देयर. यस सर. So I'll just stop here for now because actually today is my birthday today, तो आज थोड़े कुछ फ्रेंड्स आ गए हैं मेरे घर पे ना यहाँ पे. Happy birthday, sir. Happy birthday, sir. Thank you so much. Happy birthday, sir. So let's connect tomorrow from here. आज से जब मैं थोड़ा लेट भी आ कर इसलिए हो गया, तो कुछ लोग रात को आ गए तो थोड़ा घर पे
there was some celebration happening, तो चक्कर में उठने में लेट हो गया, so you had to wait for that. So in the meantime ना मैं ये वाला कोड भी शेयर करूँगा. So what I will expect is that इस कोड को एक बार थोड़ा go through करना till tomorrow, right? आप अपने exercises को देख लेना एक बारी, so that once we start discussing it on tomorrow, आपके पास आधी चीजें आपके ऊपर पहले से ही clear हो. But otherwise, I will be able to discussing on it from the scratch. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you. Okay, sir. Bye and party hard. हाँ अभी तो क्या कोरोना में घर में कर सकते हैं, so it's all in house party. Thank you everyone.